ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੰਤ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੁਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿਚ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਕੂੜਿਆੜ ਕੂੜ ਝੜ ਪੜਿਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਨਾਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਟਨਹਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਅਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ। ਸ਼ਹਿਨशाह वाली नासिर औ मंसूर, इज़्ज़त ई मंजूर, हक रा मंजूर, जुमला फैज़ नूर। हक हक आगाह शाह शहनशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर बादशाह दरवेश श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरण छू प्राप्त इस मुकद्दस स्थान दिया हाजरियां परदे परम सन्मान जो सत्संगी जनों, सतगुरु जी की बड़ी बख्शिश सदका जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। जपो जी, तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, पोथी परमेश्वर का थान। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदे इत्थों के इलाका निवासी सत्संगी जनों, आप सारिਆਂ ਨੂੰ हथ बन के गुरु पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े की मुबारकां। आप संतां के चरणों 'च इस्तकबाल है।
ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ, ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਣ। ਲਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਰੰਗ ਭੇਦ ਰੂਪ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਯਥੁਰ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਯਜੁਰਵ ਵੇਦ, ਇਹ 4 ਵੇਦ ਨੇ। 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, 24 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਤੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਰਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਈ, ਬਾਈਬਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ 4 ਸੈਮਿਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਧਰਮ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਉਹ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈਬਲ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ। ਈਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ। ਪੌਲ ਸਮਿਥ, ਜੌਨ ਪੌਲ, ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸੈਮਿਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਾਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸੈਮਿਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ
हज़रत मुहम्मद अपनी हयाती दे विच ना कुरान दे एक अखर लिखे गए ते ना ही हदीसां लिखे गए। वो भी हज़रत मुहम्मद साहब तो बाद 4 खलीफे आए ने। 4 खलीफियां विचों जिहड़ा अबू बकर है, उस खलीफे ने ये कुरान की संपादना की ते पता नहीं की कुछ अपने वल्लों भी पा दिता। यही तो होया ना, जो हज़रत मूसा नूं इल्हाम होया वो बिल्कुल जैनवन ते प्योर शुद्ध खालस नहीं पिया तुराहा च। जो ईसा मसीह नूं होया वो भी नहीं पिया, क्योंकि कई 100 साल बाद वो ग्रंथ तैयार होए। ते जो मुहम्मद साहब नूं इल्हाम होया वो प्योर कुरान च नहीं पिया। अबू बकर ने की कुछ पाता अपने तो, इहदा अंदाज़ा नहीं। इसी तरह इस धरती ते वेद ने, वेदां दे विच बड़ियां सारियां विचारां ने, कर्म कांड भी ने, वेदां च यज्ञ भी ने, वेदां च स्वर्ग नरक दी विचार। मैं अपने वल्लों कुछ भी एक भी अखर अपने वल्लों नहीं बयान करांगा। जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च दर्ज है सिर्फ वही आप संगतां दे सामने रखांगा। उपनिषद ने, पुराण ने, इन्हां दे विच पता नहीं किन्नियां कुछ नरक सुरग अवतार पाप पुन दी विचार ते 4 वर्ण जातियां दे वंड ने, भेत ने कि इस धर्म जाति का बंदा, इस जात का बंदा ये धर्म पुस्तक नूं नहीं सुन सकता। पर धन आखो श्री गुरु नानक देव महाराज जी नूं, जिन्हां ने अपनी हयाती दे विच, पहला मैं ये जिक्र करदा जी, जे अज इत्थे बैठे हो ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे विच ते उस पार ब्रह्म परमेश्वर च कोई भेत ना जाणियो। भाई गुरदास जी ने जिक्र किया, आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो। जपो जी, आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो। आप नारायण रूप गुरु नानक साहब जी की आमद है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, ते रस्ता भी बिल्कुल निर्मल चलाया। ये पंथ भी नवा चलाया, नानक निर्मल पंथ चलाया, कोई भेत नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं पुछया जाए कि तुसी दसो गुरु कौन है, सब तो पहला शब्द श्री राग महला पहला, मोती ता मंदिर ऊसरे हैं, रतनी ता हूँ हैं जड़ाऊं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाऊं, मत देख भूलां विसरै तेरा चित ना आवे नाऊं। ये बाहर दे पदार्थां नूं के देख के किथे रब ना चेता। अगली तुक, हर बिन जियो जल बल जाऊं, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर ना ही थाऊं। जे गुरु नानक साहब कहते मैं अपने गुरु नूं पुछ के वेख्या कि गुरु दे चरना तो बिना कोई होर थां नहीं है, तो फिर गुरु नानक साहब का गुरु कौन है? कौन गुरु नानक साहब जी का गुरु? तो गुरु नानक साहब जी ने आप बयान किया, सुनो मेरा गुरु कौन है। ये बाबत सिद्धगोश दे विच भी पढ़ते हैं, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मैं अपना गुरु पूछ विच वेख्या, ये गुरु है, शब्द गुरु ज्ञान गुरु है। इत्थे भी जे साडी तसल्ली नहीं होंदी ते गुरु नानक साहब महाराज जी की अपनी लिखत, अपनी बाणी, ये धुरकी बाणी पढ़ के वेखिए। गुरु नानक साहब कहते मेरा गुरु कौन है। सुनो दुनिया के लोगों, तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग भेद ना कोई जियो। तत् निरंजन ओदा रूप ते मेरा रूप, कोई भेत नहीं है। तत् निरंजन माया तो निर्लेप प्रभु, जोत सभाई ओदी ही जोत गुरु नानक साहब दे विच टिकी है। तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग, सोहंग ते हंसा एको ही लफ्ज ने। संस्कृत डिक्शनरी च देखो, सो ते हंग, जे सस्सा ते हाहा पुट्ठा कर लोगे तो हंस बन जाएगा, ते हाहा सस्सा अगे पिछे कर लोगे तो सोहंग, सस्सा हाहा हाहा सस्सा। सोहंग का मतलब है सोहंग मैं ते हंसा हो, हंस ते ओ, मैं ते ओ। तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। कि मेरे विच ते अपरंपर परमेश्वर च कोई भेद नहीं है। मेरा गुरु ही वो अकाल है, वो आप है, शब्द है। ते गुरु नानक साहब महाराज जी इस धरती ते आप पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत ने। ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने साडी मनुखता दी माड़ी बिरती नूं वेख के ये बख्शिश की है जी शब्द दी, जिन्हों आप पढ़ते हैं सुल्तानपुर लोधी की धरती तो, बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसे आई, बाज गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। ये सुल्तानपुर धरती दी
उस धरती का सच है। गुरु बाबा जी ने उथों त्रैलोकी नूं देखिया कि है करती सुनी लुकाई त्राहे त्राहे करदी सी। ते गुरु बाबा जी भाई गुरदास जी लिखते हैं चढ़िया सोधन धरत लुकाई। ते उस धरत लुकाई नूं उपदेश देण वास्ते कोई गल्ली बाती नहीं, कोई आम गल नहीं। ते उस उपदेश नूं दृढ़ करवाउण वास्ते गुरु नानक साहब जी ने उस खसम दी बाणी नूं, धुर की बाणी नूं, उस प्रभु दे बोल नूं इस दुनिया दे सन्मुख प्रगट कीता। उहनूं अज आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे रूप दे विच इस्तकबाल ते नमो करदे हां। जे इन्ना भी सानू हजे भी शक है तो फिर भाई गुरदास जी नूं देखिए। भाई गुरदास जी दसदे जिस वेले गुरु नानक साहब मक्के गए ने, उथे जीवन काजी या उथे मुला मसाणे या पुजारियां ने खड़े होकर पूछया कि गुरु नानक साहब असी भी किताब नूं मनदे हां, साडियां भी धर्म पुस्तक, पर जिहड़ी किताब तुहाडे कोल है उथे किताब दा जिक्र है। मैनूं खिमा बख्शिओ, आपां भावें सत्कार दे विच पोथी साहब या गुरु ग्रंथ साहब महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, पर उत्थे किताब लफ्ज़ भी आया। पूछण फोल किताब नूं हिंदू वडा के मुसलमान होई कि गुरु बाबा जी जेड़ी तुहाडे कोल है लिखत, जेड़ी तुसी किताब लई फिरदे हो, ये खोल के देखो, ये खोल के सानू दसो कि इहदे विच की लिखिआ, कि इहदे विच की उपदेश है। पूछन फूल खिताब नूं हिंदू वडा के मुसलमान होई ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने फिर धुर की बाणी का उपदेश दृढ़ कराया। बाबा आखे हाजिया शुभ अमला बाजों दोनों रोई, ते बाणी च वचन गुरु नानक साहब जी का कादी कूड़ बोल मल खाए बामण नावे जिया घाए, जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद, कि शुभ अमला बाजों दोनों रोई, सब ही रोणगे। ते गुरु नानक साहब जी ने दृढ़ कर दिता, साहिब जी ने इन्नी बख्शिश की। जद ये बाणी आई, जद ये तुर की बाणी आई, तो गुरु नानक साहब जी ने अपने दस्ते मुबारक नाल उस बाणी नूं सांभ लिया, उस बाणी नूं आप लिख लिया। तो गुरु नानक साहब जी ने इस बाणी बाबत उपदेश किया है, दुनिया के लोगों शक ना करियो, सिर्फ सिर झुका के हिरदा अंदरों भिज के ये पढ़ियो, जैसी मैं आवे खसम की बाणी। जपो जी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये ज्ञान उस खसम दा है, किसी मत या बुद्धि विचों नहीं निकली हुई बाणी। ते सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं पुछिए कि पातशाह जी तुसी ते गुरु नानक साहब दे दर्शन कीते, तुसी सेवा कमाई घालना कीती, तुहाडे विच ओह जोत टिकाई गुरु नानक साहब जी ने, तुसी की अनुभव, तुसी की दस दिओ दुनिया के लोगों को ये बाणी की। ते गुरु अंगद साहब महाराज जी को करतारपुर साहब की धरती ते पूछा गया होएगा कि इस धरती ते होर भी धर्म ग्रंथ ने, वेद कतेब ने, 4 वेद ने, पुराण ने, उपनिषद ने, होर लिखतां ने, फिर ये बाणी क्यों? ते गुरु अंगद साहब महाराज महला दूजा उन्हां दा श्लोक सरवण करो, साडे शंके मिट जाणगे। धन गुरु अंगद साहब महाराज इस बाणी बाबत उपदेश करते हैं, कहते कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार, दे दे लैना लह लह देना नरक सुरग अवतार, उत्तम मध्यम जाति जिनसी भरम पवै संसार। कहते सुनो, फिर तुसी कहंदे हो कि इस तो पहला उपदेश पए ने, पर दुनिया के लोगों ने लिया केड़ा उपदेश है? वेदा में है नाम उत्तम है सुर सुने नाही, फिर है ज्यों बेतालिया बेताले फिरदे ने लोकी, नहीं सुनिया उन्होंने। उन्हां विच की है? कथा कहानी। कहते कहानियां पाईयां गईयां ने वेद कतेबां च, अंदर दी तरवास तृष्णा वाली बिरती किवें बुझाएगी वो कहानियां? उस कहानियां तो किवें तृप्त होएगा जे कोई सत दे तत्त दे मार्ग ते तुरना चाहुंदा है? कथा कहानी बेदी, बेदी का मतलब वेदां च, कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार। दुनिया के लोगों को हाय भरमा दिता उन्होंने, पाप किया पुन किया, ते अज यही कुछ करी जाने असीं। ये कर लीए तो उत्थे जाके धागे बनाइए, तवीता बन लीए तो साढ़े पाप माफ हो जाएंगे, उत्थे सिर झुका लीए तो सानू पुन मिल जाएगा। तो यही कुछ तो उस वेले तो चलता आ रहा सी। सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी ने यह बचन किया, दुनिया के लोगों सुनो, अमृत बाणी। अमृत बाणी क्यों आई इस धरती ते? क्योंकि लोकी बड़े भरम दे विच भुल चुके ने। इहदा जिक्र किया, कहंदे कि इस धरती दे उत्ते पाप पुन विचार, कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार, दे दे लैना लै लै देना नरक सुरग अवतार। कि पंडित कहंदा आ जाओ तुसी बनारस काशी आ जाओ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਂਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਸਵਰਗ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਜ਼ਕ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਮ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਝੂਠ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਜਪੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ। ਫਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਿੱਕੀ ਬਾਣੀ, ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ, ਫਿੱਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਥੇ 500 450 550 ਸਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਕੱਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਦਮ ਪੂਰਨ, ਮਦ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦ ਕਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਪੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਜਪੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜੇ ਦਿਸੈ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜੋ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਇਆ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਪ ਦੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਥ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਜਪੋ ਜੀ, ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਪਰ ਕਿਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ।
जिन को नदर करम तिनकार, सारे जपो नानक नदरी नदर निहाल। जे नदर हो जाए तो सारी निहाल हो जाते हैं। ये बाणी है, गुरु अमरदास महाराज जी ने ये बचन किए, कहते गुरबाणी इस जग मह चानण, कर्म वसै मन आए। ते साहिब जी कहते दुनिया के लोगों ओ सिखो, ओ सिख कहाण वालिओ, कच्चियां नूं ना पूजियो, कच्चियां दे पिछे ना लग जिओ, कच्चियां नूं गाण ना लग जिओ। ते साहिब जी ने बचन किया, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। ये महाराज जी का बचन है, गुरु अमरदास जी, महला तीजा, रामकली महला तीजा। आप आनंद पढ़ते हैं, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तां कच्ची, सतगुर बाजों होर कच्ची बाणी। जेड़े सुनते ने तो की हाल होंदा है, जेड़े कहंदे ने तो की बनता है। कहंदे कच्चे, सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना, कहा कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया, बोलन पे रवाणी। दुनिया के कच्चे गीत गाउण वाले चक लो, मार लो, ये वलाणा, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। साडे बच्चियां दे विच अज की जा रहा है मीडिया तो, किन्ना क कलेश, किन्नी क लड़ाइयां, किन्ना क एग्रैशन इन्हां गीतां विचों पाया जा रहा है। सानू ये एहसास नहीं। इस धरती ते सुख देण वाली, शांत देण वाली इको एक बाणी है जी, रत्ना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम। बड़े सुख ने जी इस बाणी च, बड़े गुण ने। रत्ना रतन पदारथ, जिस तरह सागर रत्ना तो भरिया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी रत्ना तो भरी हुई है। गुरु की बाणी रतन दे ये बड़े भंडार ने। भगत भंडार गुरबाणी, लाल गुरबाणी दे अंदर लाल ने। पर ये किवें? गावत सुनत कमावत निहाल, नानक नदरी नदर निहाल। इवें निहाल होना है। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। ते रत्ना रतन पदारथ के किदे विच है? बहु सागर भरिया राम। बाणी गुरबाणी लागे, तिन हथ चढ़िया राम। जेड़ा गुरु बाणी नाल लगेगा, सच्ची बाणी नाल, जे कच्ची बाणी नाल हर हर नित करह रसना, मूँह तो ऐ लगेगा रब रब कर रहा है, पर अंदरों कच्चा है, फिक्का है। हर हर नित करह रसना, कहा कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया, बोलन पे रवाणी। वो सच्चे नहीं है। सच्चे कौन ने? आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो, जपो जी, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो। ये सच्चे ने जेड़े गुरु के सिख, गुरु के सन्मुख बैठ के ये बाणी पढ़ते हैं। ये बाणी का सच है। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो हो गुरु केरी। ये गुरु की बाणी है। बाणियां सिर बाणी, बाणियां सिर बाणी है जी। सिरमौर तो सिरमौर है, पर किनू मिलेगी? है बाणियां सिर बाणी। फिर जपो जी, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। ते फिर किनू? जिनको नदर करम होवै हिरदै तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची है, ये सच्ची है। ते इहदी कथा करो, जेड़ा सुनेगा वो संत बनेगा। ते फिर गुरु अमरदास जी कहते, आवो संत प्यारियो अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्या पाई है। हुक्म मने हो गुरु केरा, किवें? गावो एवें है हुक्म मनना। ये गुरु का हुक्म है। असी कहते हुक्म की है? गुरु अमरदास जी कहते ये हुक्म है। हुक्म मने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सदा गाओ ये सच्ची बाणी। यही सच्ची बाणी है। जे गुरु रामदास जी नूं पूछिए, पातशाह जी गुरबाणी की है? ते धन गुरु रामदास महाराज जी ऐसा थां देता जैसा थां धरती ते कोई है ही नहीं। डिठे सभे थाम नहीं तुद जेया। धन गुरु रामदास महाराज जी। देखो, मैं दरबार साहब अमृतसर 6 साल रहा तकरीबन। PhD गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो की है। जिस वेले गुरु रामदास जी का जिक्र आता है, मन नहीं करता कि दरबार साहब के सुरती रूप दर्शन करके अगे चलीए। धन गुरु रामदास महाराज जी ने वो थां दिता, ऐसी बख्शिश की जेड़ा थां गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने जोत वहा जुगत साए शहकाया फिर पलटी है। जोत तो वही है ना गुरु नानक साहब जी की। जोत विच कोई भेत नहीं है। ते भट्ट जी ने की किया? धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। 19 रागां दे विच बाणी गुरु नानक साहब महाराज जी ने लिखी। गुरु अंगद साहब जी ने श्लोक लिखे, गुरु अंगद साहब जी ने भी लिखी बाणी।
पर इत्थे 30 रागां विच बाणी जे किसी ने लिखी ते ओ जोत जद चौथे जामे दे विच पहुंची तां गुरु रामदास जी दे जामे च जाके ये पूरन प्रतख करामात हुई। 30 रागां दे विच बाणी प्रगट हुई। ये है जी पूरी हुई करामात बाणी दे बाबत। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारै धारिया। ते सिखां ने संगतां ने भट्ट कहंदे असीं मौजूद हाँ, गुरु रामदास जी दे दर्शन कीते असीं। ते उस वेले गुरु रामदास जी नूं सिख ते संगत किवें मत्था टेकदी सी? कहंदे पार ब्रह्म जान के मत्था टेकदी सी। ये बचन ने जी, सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर। गुरु रामदास जी नूं पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। एक एक लफ्ज इस बाणी दा बड़ा कीमती है। ते फिर भाई जे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं हजे भी पार ब्रह्म कर नमस्कारिया मत्था नहीं टेकिया, फिर ते अधूरे रह गए, फिर ते कच्चे रह गए, फिर ते फिक्के रह गए। फिर सब कुछ होने के बावजूद भी ये हाल है कि मन जाना सब बात जानत ही औगन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कूए पर है। हाथ च दीपक है तो खूह च डिगे फिरदे हैं। यह है धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। जिनी तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया। लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सब परवारिया। नानक तू लैना तू है गुर अमर तू विचारिया। जोत दा शंका ना रखियो जी, नानक तू लैना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। इस रूप चे पार ब्रह्म रूप चे जे दर्शन डिठोगे ना, कहते फिर मन साधारिया। मन दे अंदर अमृत वसेगा, मन गुरु वर्गा हो जाएगा। मन ऐन गुरु दे विच हर अमृत भिन्ने लोएना। मन प्रेम रतन्ना राम राजे, मन राम कसवट्टी लाया कंचन सो विन्ना। कहते कंचन वर्गा ये मन हो जाएगा धन गुरु रामदास महाराज जी दे छंत। ते फिर जेड़े ये बाणी पढ़ेगा, कहते ये बाणी कहते अमृत बुरकै राम राजी। कहते उहदे तन दे रोम रोम विचों बाणी दा अमृत छिड़केगा। बाणी निकलेगी जेड़ा इस बाणी नूं पढ़ेगा इस रूप च। कहते अमृत बुरकै राम राजे, जिस रूप दे विच जन नानक मुश्क च घोलिया। ये मुश्क च घोलिया है जी, यदि खुशबू गुणा का होवै वासला कड़वास लई जै। कहते बाणी खुशबू की तरह है, जिदे अंदर वस गई जेड़ा बोलेगा कहते सारे चुगिरदे नूं खुशबू खुशबू कर देगा। यही है ना खुशबू ते बदबू की है। कच्चे बोल कच्चे गाने कच्ची बोलियां कच्चे जिन्ने भी लफ्ज ने ये बदबू की तरह ने। बदबू जिथे होंदी है लोगों नूं परां परां खिंड पुंड कर देंदी है, पर गुरु की बाणी खुशबू की तरह है। जिथे खुशबू होएगी सारे इकट्ठे होकर बह जाएंगे। गुणा का होवै वासला कड़वास भईजै, ये है खुशबू। धन गुरु रामदास महाराज कहते दुनिया के लोगों, ते भट्ट जी ने गुरु रामदास बाबत की क्या, हम अवगुण भरे एक गुण ना। ये बाणी दा जे ये भी शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सन्मुख हिरदे तो भिज के पढ़ लिए ना, धन गुरु रामदास जी बख्शिश करनगे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखै विख खाए। अमृत ये है जी, इस बाणी दे अमृत नूं छड्ड के ते कच्चे विख नूं खा रहे हैं, कच्चे पासे तुरे हुए हैं। अमृत छाड़ विखै विखाई माया, मोह भरम पै भूले। सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। पर केड़ा पंथ है, केड़ा रस्ता है? एक उत्तम पंथ सुनियो। आ जिहड़ा तुसी रस्ता अपनाया ना, गुरु रामदास जी भट्ट जी कहते गुरु रामदास जी महाराज जी की उपमा लई यही रस्ता गुरु रामदास जी ने उत्तम दस्या कि जिथे बैठ के तुसी गुरबाणी बनी है, गुरबाणी पढ़ते हो गावो सुनो पढ़ो। नित भाई गुरपुरै तू राख्या, प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी के साहिब जी कहते कि ये बाणी इन्नी कोमल है, अंदर कोमल कर देगी। सतगुरु जी का शब्द है, द्वादसी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान। ते की कहते हर अमृत पान करो साध संग। ये पंथ है, ये रस्ता है कि एक उत्तम पंथ सुनियो। गुरसंगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो। ते संगत की है महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। संगत च बाणी जपण वाला मैल खोई कोट आगाह रह निर्मल भये चीता। कहते अंदर बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। यह है सत्संगत की महिमा।
ते अमृत बाणी दी महिमा है। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे, जपो जी सुन सुन होवे परम गत मेरी, परम गति देने वाली है। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी साहिब जी कहते द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साथ संग, मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच भू आत्मा हर नाम रस भुख है। ये बाणी सुनो, बाणी पढ़ो, बाणी बनो। एक कोमल बाणी कोमल बनाएगी अंदर। पत्थर दिल है गया सी, इन्ने पत्थर दिल है, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण मारे। जे हज़ारां साल भी पत्थर नूं पानी च रख दो ना, हज़ारां साल बाद भी कड्डो, पत्थर फिर अंदरों सुक्के दा सुक्का है। साडा मन भी वो है, गुरु लागे बैठ के भी, अमृत लागे बैठ के भी पत्थर वर्गे असीं सुक्के दे सुक्के। देखो मैं किसी नूं कटाक्ष नहीं, किसी नूं नहीं, अपनी गल कर रहा। कित्थे सतगुरु जी बख्शिश करन, अंदर भिज जाए। कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच भू आत्मा हर नाम रस भुख है। ये पंज भूतक शरीर दे विच नाम दी दात देण वाली बाणियां, नाम कितों होर नहीं मिल सकदा तुहानूं। छड्ड दो भुलेखे सारे। सतगुरु गुरु रामदास जी कहंदे सुनो दुनिया दे लोको, ये बाणी की है? कहंदे सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। कहंदे बिल्कुल सत रब ही है। सतगुर की बाणी महला चौथा, धन गुरु रामदास जी। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। गुरबाणी के अर्थ कितों नहीं पता लगणगे। गुरबाणी के अर्थ जे करने ने ते गुरसिख का जीवन देख लो, जिहड़ा सच्ची मुच्ची गुरसिख है, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रहत कमाउंदा है, बाणी पढ़दा है, कहंदे ओ गुरसिख का जीवन ही गुरबाणी के अर्थ ने। धन गुरु रामदास जी। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, पर सतगुर की रीस है कच पिच बोल दे। देहधारी बड़े बन गए जी, अपनी पूजा। गुरु नानक साहब ने तो कभी नहीं कहा कि सानू पूजो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तो कभी नहीं कहा कि साड़ी पूजा करो। सतगुरु जी ने तो यही कहा, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, एवं कम है। पर सतगुर की रीस है कच पिच बोलते से कूड़ियार, कूड़ झड़ पड़ी है। कहते उन्हों का अंत माड़ा है, वो कूड़े ने जेड़ा सतगुर की रीस है अपनी उपमा करान लग गए। ये बाणी सत स्वरूप है। धन गुरु रामदास महाराज जी कहते, कहते इस धरती ते बाणी, कहते सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो। दो बारी आख्या, झूठ ना मनियो। कहते सत है, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो। हर करता आप मूहों कढ़ाए। कहते करता अपने मूँह तो आप कढ़ रहा, ये होर कोई नहीं बोल रहा। तो धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं पुछिए कि पातशाह जी कि तुहानूं इस धरती ते सब तो प्यारी चीज़ की है, सब तो नेड़े तुहाडे हिरदे ते की है? सिर्फ एकाग्रचित सरवण करो। ते धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी, नाना गुरु गुरु अमरदास जी दा देखो उन्हां नूं आशीर्वाद जिहड़ा मिलिया कि दोहिता बाणी का बोहिता। ये बाणी के बोहिते ने धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी। देखो दर्शन कीते पहले गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी, उन्होंने कहता जैसी मैं आवे खसम की बाणी। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी, अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई। तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी, आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी। धन गुरु रामदास महाराज जी, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो। हर करता आप मूहों कढ़ाए। ते हुण दर्शन करो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी इस बाणी की उपमा बाबत की कहंदे। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं ये बचन गुरु अमरदास महाराज जी नाना जी दे कि बाबा ये जड़े ना ये बाणी का बोहता है, ये छोटा नहीं है, ये थाल दा मालक है गुरु अर्जन। क्योंकि दो होर सन जी पोते वेड़े च खेडण वाले, उथे पृथ्वी चंद भी खेडदा होएगा, उथे मोहन भी खेडदा होएगा। पर जिहड़ी बख्शिश गुरु अर्जुन साहब नूं मिली कि तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, जन्म तो ही ब्रह्म की पछाण करने वाले इस धरती ते गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने। ते भट्ट जी ने की किया गुरु अर्जुन साहब महाराज लई? कहंदे धरती का जहाज बनाओ, पानी का जहाज। उस जहाज से तुसी 100 200 1000 5000 बंदा, वध तो वध 10,000 बैठ सकेगा जे वड्डे तो वड्डा बेड़ा बना लिया जाए। पर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ऐसे बोहित ने, ऐसे जहाज ने जे सारे गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे लग जान, कहंदे सारी तर जाणगे। सारी सृष्टि तारण वास्ते गुरु अर्जुन साहब महाराज जी जहाज ने। अर्जुन जहाज, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, जपो जी कलयुग जहाज अर्जुन गुरु। सगल सृष्ट लग
बेहतर हो, कहते सारी सृष्टि लग के तर जाएगी। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। ते गुरु अर्जुन साहब जी ने पूछा सब तो प्यारा की है, क्योंकि ये असीस माता जी की सिर्फ गुरु अर्जुन साहब जी को मिली है। ये असीस होर पुत्र को नहीं मिली, होर पुत्र को नहीं मिली। वो असीस ये है जी, पूता माता की, जपो जी, पूता माता की असीस। वो असीस की है, वो कोई जन्मदिन की असीस नहीं, वो कोई लंबी उम्र की असीस नहीं। सुनो माता जी की असीस दे रहे हैं गुरु अर्जुन साहब महाराज जी। पूता माता की असीस, निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। तुहानू वो प्रभु एक निमक वास्ते भी ना विसरे, एक निमक भी उस बाणी को ओला ओला ना होए। पूता माता की आशीष, निमक ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत का पढ़ पत परमेश्वर राखी। भोजन कीर्तन नीत सब तो बड़ा भोजन ये है जिहड़ा तुसीं छक रहे हो। शरीर नूं असीं जिन्ना मर्जी छकाइए, 4 घंटे बाद फिर भुखे दा भुखा। पर जिस दिन आत्मा बाणी का भोजन छक लेगी ना, सच्ची गल है, ये बाणी के अमृत नाल त्रापी जाएगी, संतोख हो जाएगी। जिन्हों क्या कृपा जलते ही नानक सारंग को होए जा दे तेरा नाय वासा। ये वाला कृपा जल दे। पूता माता की आशीष है, यह है रंग तमाशा पूर्ण आशा कबे ना व्यापे। निमक ना विसरो तुमको हर हर। ते गुरु अर्जुन साहब जी ने जे पूछिए सब तो प्यारा की है, ते साहिब जी ने क्या सब तो प्यारा पता की है? सुनो, हमारी प्यारी अमृता, सब तो प्यारी ये बाणी है, और कुछ प्यारा नहीं है। हमारी प्यारी अमृतारी गुर निमक ना माते टारी रे। जे माता जी कहते निमक ना बिसरो तुमको हर हर, ते गुरु अर्जन साहब कहते निमक ना, कहते मैं फिर एक निमक भी इस बाणी को ओला नहीं किया ना। निमक किनू कहते हैं? अख दे चखाउण जिन्ना भी गुरु अर्जन साहब जी ने इस बाणी का नागा नहीं पाया। ये जरूरी नहीं कि जुबान बोल रही है तो बाणी पढ़ रहा सिर्फ। जुबान जो बंद भी है ना, तां भी गुरबाणी का रूप हो जाता है गुरु का। उठत बैठत सोबत जागत ए मन तुझे चितारी। चेता गुरु दा ए है प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। ए कामना प्राणा दी आधार बाणी है। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। ए साहिब जी उठत बैठत सोबत जागत ए मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की व्यथा, मन दे विच सुख दुख चलते ने ना, ते गुरु पातशाह जी कहते सुख दुख मेरे को रख ते मेरी बाणी लै जा। जिथे दिन रात सुखा दुखा च रोना रहना है, कहते उत्थे बाणी ते आ, उत्थे बाणी लै ते सुख दुख मैनू दे जा। कहते फिर आनंद कमाल है। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझी आ गए सारे। कहते सारे तुहानू देते ते फिर जो तुम करो सोई भल हमरे। ये बाणी फिर साडे लई भला है। तुसीं कहा ना कि गुरबाणी बड़ी है, फिर साडे लिए यही भला है, साडे लिए यही सच है। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी सब तो प्यारा की है। हमारी प्यारी अमृतधारी को निमक न मनते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिंद्रम दुर्गम हरदम रहजम हर कंठ नानक पुरहारी रे। क्या कमाल की बख्शिश गुरु अर्जुन साहब। सुनो भाई, ये हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमक न मनते टारी। गुरु ने एक खिन वस्ते भी इनू दूर नहीं किया। गुरु नानक साहब महाराज, मैं जप बाणी इसलिए जिक्र कर रहा क्योंकि धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की बाणी का असीं जिक्र कर रहे हैं, ये संपादना का जिक्र कर रहे हैं। पर 550 साल गुरु नानक साहब जी का भी चेते है, वो भी आने वाला। घटो घट जप बाणी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कंठ रोज करिए, ते ये 550 साल तो बाद भी करिए। देखो जी, मैं सच्ची कहना, कोई बिरला इतने बैठा होएगा जिन्हें 500 साल वेख्या होगा, कोई बिरला। ते 550 साल असीं वेखांगे सतगुर जी की कृपा नाल। पर सतगुर जानता कोई भी इतने 600 साल नहीं देख सकता, क्योंकि वैसे तो हम आदमी हाँ, एक दमी मोहलत मौत ना जाना। एक दम का भी नहीं पता, दम दम सदा संभालता, दम ना बिरथा जाए। एक दम का नहीं पता कल की होना। पर मैनू इन्ना पता 550 साल ही सिर्फ असीं देख सकते हैं, जिहड़े आपां बैठे हैं 50 साल बाद कौन होएगा। ये करिए, देखो मन के विच इन्ना फुरना लेके आइए। 550 साल गुरु नानक साहब का आ रहा है, समर्पित होइए गुरु नानक साहब जी।
गुरु के सिख बनिए, गुरु की बाणी को समर्पित होइए, फिर ये शताब्दियां नहीं आउणियां, फिर गुरु नानक साहब के मुड़ के साडे जीवन च ये सब तो बड़ी बख्शिश है जी जिहड़ी शताब्दी गुरु नानक साहब जी की आ रही है। कईयां दे अंदर रूह चुनकार होएगी सतगुरु जी की बाणी की, हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमख ना मन ते टारी रे, धन गुरु नानक साहब महाराज गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का, एक दाता सो मैं वो विसरे ना, गुर निमख ना मन ते टारी रे, ओ ना विसर जाए। दर्शन परसन सरसन हसन चार अखर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी। इस बाणी का दर्शन ये नहीं है जी, रुमाले के अंदर दर्शन नहीं बाणी का, मैनू क्षमा वक्त आ गुरु के दर्शन नहीं है। इतों आके मत्था टेक के बस तुर के इतने सुख दुख चली जा रही, ये दर्शन नहीं। गुरु अर्जुन साहब जी दर्शन की ने, गुरु अर्जुन साहब कहते सुनो दर्शन की ने, फिर जिन्हें गुरबाणी के दर्शन करने हैं कहते इस बाणी के दर्शन गुरु साहब कहते मैं दसदा हम धनवंत भागट सच नाए, कहते धनाड़ बड़े सारे ने, सारी धनाड़ सारे के घर च बख्शिश माया बहुत है, पैसा बहुत है, पर किसी के घर के पैसा होए ते बड़े भाग भी होने कोई गिरला नहीं। पैसा तो सारे के घर है पर बड़े भाग सारे के नहीं हो सकते। कोठियां कारां सब कुछ साढ़े घर पुत्र दियां पोतरे हो सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है सब कुछ होके भी सुख होए। फिर सुनो जी, मैं बाणी का सच कर रहा, आप संतां सारा कुछ दुनिया के सारे पदार्थ भी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं पदार्थों के विचों सुख भी होए। पर यही कोई बिरले ने जिन्हें कोल कुछ भी नहीं, वो कोल बाणी है भली सुहावी छापरी, जावे कोई गाय कितनी कामना धौल हर जथार बिसराए, इथे भूखो रूखो भोजन भून सहन सकी प्रयासंग सुख ब्यावे, ये कोई की बख्शिश है। ये दर्शन की ने, ये दर्शन नहीं है। जे दर्शन करने इस बाणी को, इस पोथी साहब को, ग्रंथ साहब को खोलना पड़ेगा, खोल के पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के विचारना पड़ेगा। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज हम धनवंत भागट सचनाए हर गुण गाए, सहज सुभाए बंद करके नहीं, पीऊ दादे का खोल खोलना पड़ेगा। पीऊ दादे का खोल मिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जाका कछु ना मोल। दुनिया के पदार्थ भी इतने रख देना, ये नहीं लिया जा सकता। कंचन स्यों पाइया नहीं तो मन दे राम लिया है मोल, अपना आप देना पड़ेगा, अपना आप। करवट भला न करवट तेरी लाग करे, सुन बेनती मेरी हों बारी, मुख फेर प्यारे करवट ते मुंह को काहे कुमारे। भगत रविदास यही कहते हैं ना, कहते मैं तो मोल महंगी नहीं जी सका, मैं तो अपना आप बेच के बख्शिशा नहीं है नहीं। यह है दर्शन, इनू खोल के पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन ला जाका कछु अनमोल। भरे भंडार कूटा तोल, एक काम करो खाव है खर्च है, रल मिल भाई टोट ना आवे वध हो जाए। वादे ने बड़ी बख्शिशा ने जी, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एक खजाने रहा न लाए। रला लैन के गुरु अपने थे, गल बकड़ी पाण के गुरु साहब जरा इस मार्ग से तुरेगा, इत मार्ग चले भाईगड़े गुरु का है, सुकार कमाई जियो त्यागे मन की मतड़ी किसारा, दूजा भाव जियो पावे हर दर सावड़ा मैं लगा तत्ती वाओ जियो। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज ताती वाऊ ना लगी, पार ब्रह्म शरणाई चौके हमारा रामकार, दुख लगा ना भाई सतगुर पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई राम नाम औखत दिया। ये दवाई है बाणी, ये औषधि है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वरे, आदर रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीशरे, सब रखिया गुर दयाले, भै दुख विनाशने भगत बचल। ये सतगुरु जी की बख्शिश है, भगत बचल नाम लाते ये प्रभु कृपा कर दे, ये सब देव बख्शिश। भगत का बचन है, भगत का खजाना है, ये भगत की बख्शिश है बाणी। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते ये दर्शन ये मन को स्पर्श करता है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी अच्छा चलाई रहे चला रहे भाऊ कटारा कर सके, जो साहिब रखे त्यों रहे, इस लोभी का जियो टल बल है। कहते माया को कोई नहीं जित सकता, बिन तेल दिया क्यों जले, तेल तो बिना दीवा किमें जलेगा। बाणी ही बख्शिश है, पोथी पुराण कमाई है, भाव बट्टी एक तन पाई है, सच पूजन आण जलाई है, यह तेल दीवा एवं जलै, कर चानन साहिब तो मिलै, एक तन लागा बाणी। बाणी स्पर्श कर जाए कहते उन्होंने बाणी के दर्शन हो,
ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਪੋ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਲਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਕੀ ਹੈ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਸਨ ਅੰਦਰ ਪਰਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ, ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਰਸਰ ਹਾਸਰ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਸਰ ਹਾਸਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਰ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤਾ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਥ ਜਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਹਾਲੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ, ਖਿਨ ਰੰਗ, ਖਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਦਾ ਚਟਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ, ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, 24.5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ 12, ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ 6, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ 3। ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਪ ਲਈਏ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ, ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਤੇ, ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ, ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ, ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਖਿਨ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਲੇ ਗੁਰਗਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰਗਮ ਹਰਦਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਦਮ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿੱਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰਗਮ ਹਰਦਮ ਨਹਿਜਮ, ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਗੜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਏ ਸਿੱਖਾ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ। ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਦੀਖਿਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਭਿੰਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ, ਇਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ। ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਭਗਤ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਚ ਕਰ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਕਾਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਪੀਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾਪੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਗਾਵੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇ, ਜਾਪੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਸ ਕਹੋ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋਈ ਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ रहना हूँ, जब आपा परता मिट गया जब देखो तब तू। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਬੋ ਨਾਹੀ, ਕਿਛ ਆਵੇ ਨਾ ਮੁਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਜਣਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਪੀਲੂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਲੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਲੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਸੁਲਹੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੇਖਣ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਥੀਏ ਮਥਾ ਦੋਇ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਪੀਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਓ, ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਓ, ਤੇ ਛੱਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਗੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਲੂਣ ਗੋਡੇ ਥੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਤਰਾਰ ਪਿੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਇਹ ਵਿਹਾਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨਮੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਾਨੇ ਨੇ ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਣਾ ਤੇਰਾ ਨਿਹਾਰ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮਣਾ ਰਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਪਟੰਦਾ ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ 1173 ਚ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੀਲੂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤੀ, ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਕਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੂੰ ਜਾਏ ਨਾ ਅੜਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੇੜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਾਵੋ ਸੀਨੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰਨਾਥ ਤੇ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੁੱਪ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਪ ਹੈ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਧਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਮਸ਼ਕਤ ਘਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਘੇ ਪਟ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਮਰਨ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੜੀਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ